Very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family, okay? So my dear class 10 students, today we are at the part 5 of our lesson, that is control and coordination. So in the previous part we have discussed about plant hormones, about the chemical coordination in the plants which was controlled by plant hormones. Like that, in our animals also there is chemical coordination which is controlled by certain hormones in animals. About those hormones we are going to discuss today. So today's class has a surprise for you. So get ready, let's get started. So before starting today's class, let me ask you some question. कभी ऐसा होता है ना, यू फील लिटिल फ्राइटेंड, ठीक है ना, अचानक से कोई सांप देख लिया और कोई बच्चे बोलते हैं कि सपने में भूत देख लिया. सो यू यूज टू फील फ्राइटेंड, राइट? और समटाइम्स यू कैन सी जियान हमेशा क्या गुस्से में रहता है, राइट? वाई? क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों डरते हैं? वाई? बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स like hormones, they used to control. Our chemical coordination is controlled by these hormones about which we are going to discuss, okay? So in today's part we will be discussing about glands, types of glands, hormones, different types of endocrine glands, ठीक है? So from the basic I will be teaching you, right? So what are glands, what are the different types, what are hormones, everything will be discussed today. So stay tuned. First is, what are glands? See, glands are important organs located throughout the body. In our body, we have different parts, okay? Different organs. So glands are also organs, but they are very much important. Why? Because they produce and release substances. They produce something. Like my duty is to teach you. मेरा काम क्या है? ठीक है? I will teach you. Teaching is my work. Like that, glands are organs which will secrete something, they will release something, they will produce something, okay? So on their function, on the basis of their function, they are divided into two types, right? So one is endocrine, one is exocrine. Basically, what is the difference between endocrine and exocrine? Endocrine is like a grown up child, ठीक है? And exocrine is like a small baby. Like जैसे आप छोटे बच्चे थे, your mother used to drop you to the school. मम्मी क्या करती थी, बस के पास लेके आपको चढ़ा देती थी कि आप स्कूल बस में जाओ, जाके स्कूल में ही पहुंचना है. और जब आप बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे, मदर इज टू गिव यू मनी, राइट? ये लो, स्कूल पहुंच जाना या फिर कॉलेज पहुंच जाना, राइट? सो एंडोक्राइन इज द ग्रोन अप चाइल्ड. वो क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस समथिंग ना, ग्लैंड, इट विल प्रोड्यूस समथिंग एंड इट विल डायरेक्टली सेंड दो सब्सटेंसेस टू द ब्लड. लेकिन एक्सोक्राइन क्या है? वाया मीडियम जाएगी. किसके थ्रू? थ्रू ए पाइप, दैट इज कॉल्ड एज डक्ट, ओके? डक्ट मीन्स पाइप. सो एक्सोक्राइन जो भी सिक्रेट करेगी थ्रू द पाइप, इट विल सेंड टू द पार्ट, ओके? सो लेट मी explain you again. Endocrine glands. What are endocrine glands? They are ductless glands. It means they do not have a medium, like pipe like medium, okay? And release the substances that they make, like hormones. Endocrine glands, whatever they release the chemical substance, that is called as hormones, which is directly sent into the bloodstream. It is a grown up child ना, मम्मी ने पैसे दिए तो उसने क्या किया? डायरेक्टली वो खुद जाता है, राइट? मम्मी और बस स्टैंड के पास छोड़ने नहीं जाती, नो वाया, ओके? सो इट इज़ इंडिपेंडेंट. सो ये क्या करेगी? वॉट एवर इट विल रिलीज, इट विल डायरेक्टली सेंड इन टू द ब्लड स्ट्रीम. So we have different type of endocrine glands like pituitary glands, the thyroid gland, the adrenal gland, and the testicles in case of male, and in case of female it is ovary, and the pancreas, the parathyroid glands, and the pineal glands. About each and one gland we are going to discuss today, okay? The next comes exocrine. Okay, exocrine is what? They release their product through a duct. Duct means pipe. For example, salivary gland, it is in my mouth, okay? Saliva is also secreted inside the mouth. तो वॉट एवर दे आर रिलीजिंग थ्रू ए पाइप एंड नियर द, जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वो रिलीज करता है, वहीं पे ही उसका काम होता है. लाइक इन द माउथ द सलाइवरी ग्लैंड इज देयर, ओके, एंड द माउथ द सलाइवा इज रिलीज्ड. बट क्या होता है एंडोक्राइन में? फॉर एग्जाम्पल थायरॉइड, राइट? माई थायरॉइड इज हियर. माई थायरॉइड ग्लैंड विल रिलीज थायरोक्सिन विच विल एक्ट ऑल ओवर द बॉडी, राइट?
सो क्या होता है एक्सोक्राइन में, क्या होता है जहाँ पे वो उसका सब्सटेंस प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे इट विल बी रिलीज्ड, देयर इट विल फंक्शन, ओके, नियर द साइट. बट एंडोक्राइन व्हाट दे विल डू, whatever they will release, they can function farther away places in our body. Understood? Yes. Now next comes hormones in animals. What are hormones? Okay, see, as in plants, chemicals are there which used to coordinate everything. In the same way, in animals several activities are controlled or coordinated by some chemicals. Those are called as hormones. नेक्स्ट इज वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये हार्मोन जो है, कहाँ से आता है, बाजार से लाते हैं? नो. कोई गिफ्ट देता है? नो. सो वेयर डू दे कम फ्रॉम? एज नाउ ओनली वी हैव डिस्कस, दे आर सिक्रेटेड directly into the bloodstream by ductless glands, those who do not have a via, like our grown up child, those are called as endocrine glands. Okay, so function of hormones, what is their function? See, hormones are chemical messengers. They will coordinate everything that are secreted by our endocrine glands directly into the blood, and which carries them, the blood will carry them to organ tissues and every part, and they will do their function, right? It means chemical coordination. So first gland is pituitary gland, which is called as the master gland. Okay, and it is found inside our master organ, that is in the brain. Okay, it is located in the brain. Okay, it is located in the brain and it is attached to the bottom of the hypothalamus. Can you see that peanut size structure? This is called as our pituitary gland. Okay, it is called as the master gland because master is who? Master कौन है? I am your master. Why? Because I am controlling everything. Okay, I am looking everything. Like that, pituitary gland has the power that it can control everything. Okay, and functions in close association with the hypothalamus. This is the hypothalamus. ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, this part is called as the hypothalamus. तो hypothalamus जो part है, with this pituitary gland it works. Okay, it controls secretion of hormones by most other endocrine glands. इसलिए उसे master gland बोला जाता है ना. जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये क्या करेगी, सबके सिक्रेशन को कंट्रोल करती है. ओके, एंड इट सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स. सी, आपने देखा होगा सडनली ना आपके क्लास के बच्चों का लाइक 8, 9, 10th में आपकी हाइट बढ़ती है, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन्स, राइट, विच हेल्प अस टू ग्रो इंक्रीजिंग आवर हाइट. लेकिन ओवर सिक्रेशन, ये बोलता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. कोई भी ज़्यादा कुछ हो जाए ना तो वो ख़राब होता है. लगे आप ज़्यादा खा दो पेट खराब हो जाएगा, बहुत कम खाओ तो तबीयत खराब हो जाती है. लाइक दैट, अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ विल बी मोर ना, ग्रोथ ज़्यादा हो जाए. लाइक आप क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं जियांटिज्म. आप क्या हो जाएगा, एक राक्षस की तरह बन जाएगा. आपने जजंतरम अमंतरम वाली मूवी देखी है, जो गुलिवर ट्रैवल्स के जो हिंदी वर्जन है, राइट? तो इन दिस मूवी ये जो इंसान है, कैन यू सी दिस जायंट, ये क्या है, बहुत बड़ा हो गया. एंड दीज आर नॉर्मल पीपल, राइट? सो अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, यू विल लुक लाइक दिस. ओके, इफ़ अंडर सिक्रेशन कम सिक्रेट हुआ तो यू विल बिकम ड्वार्फ. लाइक ये कौन सी मूवी है, जीरो मूवी में ना. ओके, सो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल सेम होना चाहिए, नॉर्मल, लाइक हाउ मच इज नीडेड फॉर योर बॉडी. इफ ओवर सिक्रेशन it causes giantism, and if under secretion it is called as dwarfism. Okay, now next is pineal gland. Okay, this is also a small gland, this is called as the pineal gland. Okay, and it secretes melatonin which is stimulated by light and inhibited by darkness. देखो ये क्या करता है, secret, they will secrete something. Okay, melatonin, and ये इसका काम क्या है, देखना आप जब सुबह होता है ना, रोशनी आती है आपके आंखों में, यू बिकम एक्टिव, राइट? और जब शाम होती है, रात होती है, तो यू फील लिटिल ड्राउजी, स्लीपी फील होता है ना, नींद आती है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस पीनल ग्लैंड. ये क्या करते हैं, हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल को, रात में सोना है, सुबह को उठना है. हालांकि अभी किसी को नींद नहीं आती है, क्यों? मोबाइल जो है हमारे पास, देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्क्रोल कर लेते हैं क्या है. ओके, बट ये जो मेलाटोनिन हमारा जो हार्मोन है, ये क्या करता है, हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, राइट? नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. एज आई वाज टेलिंग, इट इज वेयर इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक. सो सीक्रेट्स थायरोक्सिन, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी.
ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल में रखती है। एंड आयोडीन एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड। आपने देखा है आयोडाइज सॉल्ट हम खाते हैं, जो टाटा सॉल्ट हो या फिर क्या अब दूसरे जो पतंजलि सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हम खाते हैं, वहाँ पे ना आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि आयोडीन उसमें ऐड है। वाई इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड, विच ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन कम हो जाए तो क्या होगा, थायराइड होगा। क्या हो जाएगा, थायराइड होगा। कॉजिंग डिजीज सच एज गॉइटर, जो क्या होगा, थायराइड जो बोलते हैं हमारा, मुझे थायराइड है, थायराइड यानी कि थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यू विल सफर फ्रॉम ए डिजीज विच इज कॉल्ड एज गॉइटर। क्या होता है, ये नेक स्वेलन हो जाता है। कैन यू सी, ये क्या है, उसका नेक स्वेलन हो गया बिकॉज दिस थायराइड ग्लैंड इज स्वेलन नाउ, क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट। अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट वन इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो, 2 lungs आर देयर इन बिटवीन देम। They produce hormones that help to make certain immunity providing cells. We have our own immunity, right? So they produce some hormone which help to make these immunity providing cells, right? Okay. Next is adrenal gland. See, this is a very interesting gland because it is located above the kidneys. ठीक है, किडनी के ऊपर ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ना, टोपी पहना है, तो ये होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनालिन। एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालिन हार्मोन विच हेल्प्स कॉप विथ स्ट्रेस स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। लाइक जैसे बोलते हैं ना बच्चे, मतलब सपने में भूत दिख रहे, सो दे यूज टू फ्रीज, इट मीन्स डर से क्या हो जाता है ना, हम लोग पूरा स्टिफ हो जाते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनल। और क्या, फाइट, गुस्सा आता है कि रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एड्रेनल। एंड फ्लाइट, भागने के लिए, किसके लिए, इसी वजह से एड्रेनल ग्लैंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एड्रेनल हेल्प्स इन फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ओके, फाइट, गुस्सा आया, फ्राइट, डर लग रहा है, फ्लाइट, भागो यहाँ से। इन दिस सिचुएशंस दिस एड्रेनल ग्लैंड विच सीक्रेट एड्रेनालिन हार्मोन दे कंट्रोल्स। अंडरस्टूड, यस। पैनक्रियास, पैनक्रियास आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। ओके, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये हमें पता है। एंड इट सीक्रेट्स हार्मोन्स सच एज इंसुलिन, ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको क्या बोला जाता है, इंसुलिन। दैट हेल्प मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, जो कि क्या बोलता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। एंड लो इंसुलिन, ये जो इंसुलिन अगर लो हो जाए तो क्या हो सकता है, हमें एक डायबिटीज़ हो सकता है। अगर ज़्यादा भी हो जाए उसमें भी डायबिटीज़ हो सकता है। देखो, अगर ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का लेवल लो हो जाए तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा, राइट। तो इसी के वजह से डायबिटीज़ होता है। और एक बात बताऊँ, ये जो पैनक्रियास है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है, हेट्रोजीनियस ग्लैंड, बिकॉज ये लाइक एंडोक्राइन भी काम करता है, एक्सोक्राइन भी काम करता है। ठीक है, इन डाइजेशन के टाइम में ये क्या करता है, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। थ्रू ए पाइप इट यूज टू सेंड इट सिक्रेशन। लेकिन ये जो इंसुलिन है जब हार्मोन सीक्रेट करता है डायरेक्टली टू द ब्लड। अंडरस्टूड, यस। नाउ नेक्स्ट इज गोनाड्स। व्हाट आर गोनाड्स माय डियर किड्स? गोनाड्स मीन सेक्स ऑर्गन्स, राइट? So testes in males produce testosterone and ovaries in females produce estrogen. So gonads mean in male the testis is the gonad and in female it is called as ovary, right? So testes in male they produce testosterone hormone which is called as sex hormone also. Okay, तो आप जब टीनेज होते हो ना तो ये जो हार्मोन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है आपके बॉडी में। दैट्स वाई बॉयज यूज टू ग्रो देयर बियर्ड। यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर डाला है, मान लो कि शाहिद कपूर, ठीक है, आपके क्लास के बॉयज़ के एग्जाम्पल ले लो। लाइक जब उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम था, कुछ नहीं है, नो फेशियल हेयर, राइट। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, आफ्टर दैट दे विल लुक लाइक कबीर सिंह में जैसा उसके दाढ़ी वगैरह सब बढ़ गए थे ना, लाइक फेशियल हेयर, मुस्टैक एंड बियर्ड यूज टू ग्रो, ठीक है। So like that in female also this estrogen hormone causes the enlargement of breast and pubic hair growth like that. Okay,
Now, these hormones are responsible for changes occurring during puberty. As I told you, teenage में puberty में क्या होता है, आपके बॉडी में certain changes आते हैं, ठीक है. तो कुछ characteristics changes आते हैं, like your behavior, like menstrual cycle happens in case of females, and in males they used to, yes, facial hair growth like mustache and beard, etc. Understood? Yes. So let us revise whatever we have discussed. So the endocrine system in humans, endocrine glands are ductless glands that secrete hormones which carry messages to particular organ or tissue through the bloodstream. They will directly send to the blood, and blood will send to different paths. These glands control growth, development, metabolism and reproduction. Yes, we have discussed. Endocrine glands secrete hormones in response to external and internal stimuli. There will be certain changes, after that only it will be secreted. See, first is our master organ, master gland, which is pituitary gland. We secrete growth hormone, and function is regulates growth and controls the functioning of endocrine glands. Master gland, right? It controls every endocrine gland. Then comes thyroid, which secrete thyroxine. Okay, it controls the metabolism rate and growth को balance करती है. It also bring about balanced growth. Then comes thyroid, parathyroid. ये क्या करती है? पैराथॉर्मोन and controls calcium balance in the body. Then comes adrenal. Adrenaline prepares body for emergency, जो कि क्या था? Fight, flight and fright. Then pancreas, insulin क्या करती है? ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल को मेंटेन करती है. देन कम्स टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओवरीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो क्या करती है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल so that you can elaborate each and every gland, their hormones secreted and the functions. Okay, I hope you have understood. Now next is feedback mechanism. What is feedback mechanism, my dear kids? देखो, as हमने discuss किया, there will be certain changes in your environment, maybe inside or outside. After that only these hormones will be secreted, right? So जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमने लिया, आपकी बुक में यही एग्जाम्पल दिया है कि शुगर लेवल ब्लड में कैसे कंट्रोल होता है. ठीक है, मान लो हमने खाना खाया, राइट? तो उसमें अगर ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो पैनक्रियास के पास ब्लड पहुंचा तो उसने पता लग रहा अरे इसमें तो ज़्यादा है. सो व्हाट इट विल डू, इसने इंसुलिन सिक्रेट किया. ठीक है, इंसुलिन इसने सिक्रेट किया तो ज़्यादा जो शुगर था इट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर. ठीक है, स्टोरिंग द शुगर इन द लिवर रिटर्न्स ब्लड शुगर लेवल्स बैक टू होम्योस्टेसिस. इट मीन्स मेंटेनिंग, ओके, नॉर्मल. तो जो ज़्यादा था, ज़्यादा विल बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड द नॉर्मल ब्लड शुगर विल बी मेंटेन. ओके, इफ ब्लड शुगर लेवल आपका डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? फिर से लीवर के पास पहुंच जाएगा, फिर लीवर क्या करेगा? अपना जो शुगर था वो रिलीज करेगा. समझ में आया? मान लो कि आपको भूख लगी है, राइट? तो व्हाट यू विल डू, टेबल पे बहुत सारा खाना है, यू विल स्टार्ट ईटिंग. ओके, तो आपको पता चल गया कि मम्मी ने देखा कि अच्छा बच्चे को भूख लगी तो खाए. अगर आपको पेट पूरा भरा हुआ है, यू डोंट वांट टू ईट, व्हाट यू विल डू? यू विल टेक देम एंड कीप इन द फ्रीज टू स्टोर देम फॉर लेटर यूजेस, लाइक दैट. तो इसीलिए अगर ब्लड शुगर लेवल का अमाउंट बढ़ जाता है, पैनक्रियास विल सिक्रेट इंसुलिन एंड दोज एक्सेस शुगर विल बी स्टोर्ड इन द लिवर. When the blood sugar level is low, this sugar will be utilized. So insulin secretion is controlled by sugar levels in the blood. तो जैसे ही शुगर लेवल ही डिसाइड करती है ना इंसुलिन कब रिलीज होगा, when it will stop. So if sugar level is high, it will be released. If sugar level is low, it will not get released. Understood? Yes. So now quotes time. If you can see the positive sides of everything, you will be able to live a much richer life than others. तो क्या होता है ना, हमेशा ना हमें क्या था, हमारी एक बुरी आदत है कि हम हमेशा दूसरों के बीच में ना खामियां ढूंढते हैं कि उसमें ये कमी, उसने ये नहीं किया, उसमें ये गलत किया. बट डोंट बी नेगेटिव, you have to look at the positive side of everything. If you look at the positive side, your life will be much more richer and easier for you, that you will find everything positive in your day-to-day life and the positivity will lead to your success. I hope that today's class you have enjoyed a lot. So at last I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.
Happy reading!